आज़ादी कवि के लिए एक शब्द है, शिकारी के लिए तीर। तन्हा आइए अब आपको मानव श्रृंखला की and achievements. The purpose is also to pay gratitude to those who have not only been instrumental in bringing the country so far in its evolutionary journey, but also have the power and potential to take forward the future vision. Today, we JUVs are here to reaffirm our pledge to safeguard the unity and integrity of our country through trustees of the institution, principal, teachers and students of Jain Bharati Vidvati Vidyalaya. सभी को नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं। It's indeed a privilege to be part of the celebrations of the Vidyalaya for the 75th Independence Day. कोरोना काल के 2 साल के बाद जब एक्शन फिजिकल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि सब बच्चों के साथ मिलके एक पार्टिसिपेट करने में, एक सेलिब्रेशन के अंग बनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। खास के इस इलाके के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, आई एम हैप्पी टू बी एसोसिएटेड। जिस तरीके से ये ह्यूमन मैप बनाया था, जिसका अभी यहाँ पे प्रदर्शन हुआ था, आई होल हार्टेडली कंग्रेचुलेट द टीम फॉर conceptualizing the idea. I understand there must have been hours of practice that must have gone into it. My wholehearted appreciation to the team comprising of the principal, teachers and all the students who have done a great job in putting up this human map together. A glimpse of the cultural program which started off with the group song. My appreciation to all the students who participated in it and for the teachers who trained the students. आज़ादी के अमृत महोत्सव पे 2-3 चीज़ें मुझे लगा मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। The development of this nation will definitely depend on the individual contribution that each of its citizens will make. So as future citizens of this great nation, if I may suggest to all the students here, we may take back 3 things from today. The first and the foremost is individual discipline, which I believe you are in safe hands at this school. Each one of us will grow up to be good individuals in case our personal discipline is maintained. So our focus first and foremost should be on individual discipline, which will also include
having healthy mind, healthy body. And the second important thing is to have a goal in life and work towards that goal. It all started with goals in the minds of individuals, which has led them to the place where they are. So I honestly believe that each one of you should have a goal at this stage in your minds. Nurture them, follow them, work towards them, and you will one day see them fruiting up. Third and the most important thing is the contribution towards the society and the country we live in. In case we have good personal discipline, our goals are set, we will invariably contribute to the society around us and to the country. So with these words, my best wishes to each one of you, and we hope that we will associate further in this contribution towards the country. Thank you. द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं गौतम और महावीर के भारत से आती हूँ, जहाँ जनहित के लिए राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जो विश्व को हितोपदेश, कर्मयोग और वसुधैव कुटुंबकम सिखलाता है। जी हाँ, भारत जिसने दुनिया को योग और आयुर्वेद का ज्ञान दिया, जो विश्व गुरु कहलाए, जो विश्व बंधुत्व की राह पर चलता है और जो सर्वे सुखिनः भवन्तु की कामना करता है। आज उसी भारत को ब्रिटिश गुलामी से आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत गए और आज हम सब यहाँ इकट्ठा हैं अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए। इन 75 सालों में हमने कितना सफ़र तय किया, क्या खोया, क्या पाया और क्या हासिल करना बाकी है, इस सब का लेखा जोखा आपके साथ शेयर करने आए हैं आज मैं वाणी और मैं रितंभरा। नमस्कार। आप
सभी को भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है और इस बार तो यह दिन और भी विशेष है। देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत को अपनी आज़ादी चुटकी बजाकर नहीं मिली, बल्कि जान की बाजी लगाकर मिली। अनेक लोगों ने अपने पराक्रम और शौर्य से आज़ादी के हवन में आहुति दी। इनमें से कई ऐसे हैं जो गुमनाम हैं। आज दिन है उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का जो हमें आज़ादी की खुली हवा में सांस लेने का वरदान दे गए और जिनके कारण आज हम यहाँ खड़े आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। साथ ही मैं नमन करती हूँ उन सब वीर जवानों को जो आज भी सीमा पर तैनात हैं, अपनी जान हथेली पर लिए ताकि उस आज़ादी पर कोई आँच ना आ सके। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए, आसमानी हो गए। आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा साहित्यकारों, कवियों और लेखकों का योगदान भी अविस्मरणीय रहा है, जिन्होंने अपनी रचनाओं से लोगों के दिलों में आज़ादी की लौ प्रज्वलित की। यहाँ मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्द दोहराना चाहूँगी। जला अस्थियाँ बारी बारी छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। देश को आज़ाद हुए 7.5 दशक बीत गए। करीब 200 साल भारत पर राज करने वाले अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया कहलाने वाले इस देश को एक गरीब और लाचार देश बनाकर छोड़ दिया। Many challenges were there in front of India after independence. Challenge of unity and integration, challenge of development, challenge of establishing a democracy and challenge of communal harmony among others. भारतीयों ने इन सब चुनौतियों को स्वीकारा और अपने सपनों का भारत बनाने में जुट गए। संविधान बनाने का काम पूरा हुआ, प्लानिंग कमीशन और इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश हुए और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के एक्सपेरिमेंट के साथ सक्सेसफुली फर्स्ट जनरल इलेक्शन कंडक्ट कर वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बना हमारा देश। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या और युवा ह्यूमन रिसोर्स के बूते हमने बेबसी और निराशा के नीरस रंगों की जगह उत्साह, उमंग और खुशहाली के रंगों को चुना और ये सिलसिला आज भी जारी है। ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन जैसे प्रोग्राम्स के जरिए एग्रीकल्चर में सेल्फ रिलायंट बने, साथ ही इंडस्ट्रियल सेटअप कर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। आज देश दोनों ही क्षेत्रों में न सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है बल्कि एक्सपोर्टर भी बन रहा है। Now India is moving towards next generation infrastructure and world class manufacturing. Ease of living के साथ ease of doing business को बढ़ावा मिल रहा है। Vocal for local and now local to global के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार हो रहे हैं। अब रूरल एरियाज तक भी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, इंटरनेट और डेटा पहुंच चुका है। रिफॉर्म्स को लागू करने वाली गुड एंड स्मार्ट गवर्नेंस आज हमारे पास है। आज हम परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पॉलिसी पर चलते हैं। अब भारत लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालने में सक्षम है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला हो या राम जन्मभूमि विवाद का शांतिपूर्ण समाधान, देश के अंदर विघटनकारी ताकतों से निपटना हो या सीमा पार दुश्मन के नापाक इरादों को सख्ती से कुचलना, ये सब हमने हाल ही में सच होते हुए देखा है। 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना से लेकर अब तक हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में कई मुकाम हासिल किए। चंद्रयान, गगनयान और मंगल मिशन जैसे स्पेस ऑपरेशंस को सक्सेसफुली लॉन्च कर रहे हैं हम। डिफेंस में भी हमारा सपना इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने का है। आज देश अपने सबमरीन्स, स्पेसक्राफ्ट्स और फाइटर जेट्स बना रहा है, जो स्वदेशी होने के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अग्निपथ योजना लागू कर युवा अग्निवीर तैयार कर रहा है भारत। आज हमारे पास 21वीं सदी की ज़रूरतों को पूरा करने वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को हकीकत में बदल
बदलने में सक्षम है। नेशन फर्स्ट की भावना के साथ आगे बढ़ना अब हर भारतीय का मनोभाव बन चुका है। भारत का हर प्रोडक्ट, हर पर्सन देश का ब्रांड एम्बेसडर है, जिसके साथ देश की प्रतिष्ठा और सम्मान जुड़े हैं। गौतम अडानी, मुकेश अंबानी या रतन टाटा जैसे बिजनेस टाइकून्स हो, या सत्य नडेला, सुंदर पिचई और नारायण मूर्ति जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज, सचिन तेंदुलकर, मिथाली राज या नीरज चोपड़ा जैसे स्पोर्ट्स पर्सन्स, या म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान और स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर जी, सभी ने देश का नाम विश्व में गर्व से ऊंचा किया। आज एक मजबूत नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की बात न सिर्फ सुनी जा रही है, बल्कि कई मामलों में हम दुनिया की अगुवाई भी कर रहे हैं। आज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर टेररिज्म और एक्सपेंशनिज्म की व्याख्या कर रहा है भारत, अपनी राय रख रहा है, सॉल्यूशंस दे रहा है। आज हमारी पहचान एक सशक्त राष्ट्र के रूप में है। ग्लोबल डिजीज कोविड-19 से लड़ने के लिए हमने किसी के आगे हाथ नहीं पसारे। देश में वैक्सीन, मास्क और पीपीई किट बनाकर हमने आत्मनिर्भरता का संदेश दिया, साथ ही जरूरतमंद देशों की मदद भी। यकीनन इन 75 सालों की विकास यात्रा में अनेक कीर्तिमान बनाए भारत ने। जो कामयाबी है उसकी खुशी तो पूरी है, मगर ये याद रखना भी जरूरी है कि दास्तां हमारी अभी अधूरी है। बहुत कुछ मिला पर फिर भी कुछ कमी तो है। बहुत सी आंखें हैं जिनमें अभी नमी तो है, नमी तो है। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश के पास गर्व करने लायक ढेरों उपलब्धियां हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। नफरत और सांप्रदायिकता की संकीर्ण मानसिकता 1947 में भी थी और आज 2022 में भी हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। आजादी के 75 वर्ष बाद भी जाति और धर्म एक संवेदनशील मुद्दा बने हुए हैं। व्यक्ति, समाज, राजनीति सभी में नैतिक मूल्यों का पतन देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सब के लिए किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। Citizens make society and society makes nation. A vigilant and aware citizen contributes in nation building, and an awakened society takes the nation towards prosperity. एक बेहतर समाज और राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, स्पेशली न्यू जनरेशन की जो फ्यूचर लीडर्स हैं। हम लोग, आप लोग, हम सब लोग ही एक न्यू इंडिया के सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। दुनिया में हमारी क्या जगह होगी या होनी चाहिए, इसको डिसाइड करने में हम सबका कंट्रीब्यूशन हो। बातों से बात ना बनेगी, कुछ करके दिखलाना होगा। गर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा। सूर्य से पहले उठना होगा, कर्म में अपने जुटना होगा। जिसकी आज कल्पना करते उसी समय को लाना होगा। गर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा, हद से आगे जाना होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है, आज़ादी का अमृत काल होंगे आने वाले 25 वर्ष। 2047 जब भारत आज़ादी के 100 वर्ष पूरे कर चुका होगा, तब इन संकल्पों की सिद्धि होगी, ये पूरे होंगे। अगले 25 साल सपने पूरे करने के लिए अहम है। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां विकास हो, आधुनिकता हो, जहां हर युवा को रोजगार मिले, जहां कोई भूख से ना मरे, जो करप्शन फ्री हो और जहां जाति और धर्म के नाम पर नफरत ना हो। जरूरत है एक सतत और ईमानदार प्रयास की। न्यू इंडिया 140 करोड़ भारतीयों का सपना है जो आज हमारी आंखों के सामने साकार हो रहा है। हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें अपने देश के उत्थान का साक्षी होने का अवसर मिल रहा है। तो आइए देश के इस प्रयास में अपना योगदान दें। परिश्रम का हवन किए जा, निष्ठा से तू कर्म किए जा। अभी चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है। एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। ना ठहरा था, ना ठहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। तो आइए आप भी हमारे साथ बोलिए, जय हिंद, 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 जय भारत, जय हिंद, जय
बेटा। आपको थोड़ा अटपटा तो लग रहा होगा कि नाटक का आरंभ एक सवाल से हो रहा है। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो बताइए, कौन देगा मेरे सवाल का जवाब? आप या आप? अरे आप तो घबरा गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सीधा साधा छोटा सा एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ कि देश किसे कहते हैं? वह देश जिसकी आन बान और शान की रक्षा के लिए सिर पर कफन बांध लिया जाता है। वह देश जिसकी सरहदों की रक्षा के लिए आंधी तूफान तपतपाती गर्मी और हड्डियां गला देने वाली ठंड की परवाह किए बिना सैनिक सीमा पर तैनात रहते हैं। वह देश जिसका अन्न जल खाकर हम बड़े होते हैं। वह देश जिसके संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया जाता है। वह देश जिसकी मिट्टी की सुगंध हमारी सांसों को महकाती है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग को देश कहते हैं, या मानचित्र पर खींची गई आड़ी तिरछी लकीरों से देश बनता है? नहीं साहब, नहीं। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से, वहां बहने वाली नदियों से, पहाड़ों से, पेड़ पौधों से, वनस्पति से, पशु पक्षियों से, वहां की संस्कृति से, वहां की परंपराओं से, वहां के रीति रिवाजों से और वहां के परिवेश से। अब प्रश्न उठता है कि यदि इसे देश कहते हैं तो देश प्रेम क्या है? उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, देश से प्रेम यानी देश प्रेम। लेकिन नहीं, इसका उत्तर इतना भी सरल नहीं है। देश प्रेम एक महान गुण है। देश से प्रेम करने वाले देशभक्त के अंदर त्याग भाव, निस्वार्थ भाव, समर्पण का भाव आदि गुण होते हैं। वतन के प्रति प्रेम और वफादारी होती है। देश के लिए मर मिटने की भावना होती है। देश को प्रेम करना तो एक तपस्या है। जीवन भर कांटों की सेज पर चलना पड़ता है। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर ही सीमा पर सैनिक और खेल के मैदान में खिलाड़ी असाधारण प्रदर्शन कर जाते हैं। सिर्फ सीमा पर लड़ने वाला सैनिक ही देश प्रेमी नहीं होता। विश्व में देश का नाम रोशन करने वाले वैज्ञानिक, खिलाड़ी, कवि, लेखक, समाज सुधारक, कलाकार, मजदूर भाई बहन, सफाई कर्मचारी, समाज सेवक और शिक्षक सभी देशभक्त की श्रेणी में आते हैं। देश में बसने वाला हर एक आम नागरिक भी देश प्रेमी हो सकता है, भले ही देश के प्रति उसका सहयोग छोटा ही क्यों ना रहा। अब तीसरा प्रश्न, हम सब अपने दिल पर हाथ रखें और स्वयं से पूछें, क्या हम अपने देश से प्रेम करते हैं? मुझे अभी आपसे इसका उत्तर नहीं चाहिए, बल्कि इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपको एक नाटक दिखाती हूँ और नाटक के अंत में आपको खुद ब खुद इसका उत्तर मिल जाएगा। और यदि उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ तो मैं उत्तर स्पष्ट कर दूंगी। तो चलिए मेरे साथ एक छोटे से कस्बे में, जिसका नाम है चुनौतीपुरा। टांग कर ले आया। हम रसगुल्ला खरीद रहे थे, हमको ये अपहरण करके लाया है। बनर्जी बाबू, आपको यह जानकर खुशी होगी कि चुनौतीपुरा के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवानी है और इस महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी आपको ही सौंपी जा रही है। ठीक है अध्यक्ष जी, हम पूरी कोशिश करेगा कि महीना भर में मूर्ति बढ़िया से कंप्लीट करके देगा। बनर्जी साहब ने अपना वादा पूरा किया और 1 महीने के अंदर ही मूर्ति बनाकर चौराहे पे लगवा दी। मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे याद आने लगते थे। है अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। देश के लिए यदि अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करना पड़े तो भी कम है। आप लोग सोच रहे होंगे, चश्मा पहनाने से कैप्टन देशभक्त कैसे बन गया? किसी भी कार्य का महत्व
उसके पीछे छिपी भावना से होता है। मैं तो उस भावना का है जिस भावना से कैप्टन ने मूर्ति पर चश्मा लगाया, क्योंकि देशभक्ति का भाव किसी दिखावे का मोहताज नहीं है। हम वही कार्य करें जो देश के हित में हो, समाज में शांति और भाईचारे की स्थापना करें, देश की तरक्की में भागीदार बने, कर्मशील बने, सत्यनिष्ठ बने, कर्तव्यनिष्ठ बने। बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर सकते तो छोटे छोटे काम करें। हम स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दें, देश की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, देश के संविधान का पालन करें, अपने बच्चों में नैतिक मूल्यों और संस्कारों का पोषण करें, बच्चों के समक्ष दोहरे आचरण से बचें, किसी भी स्तर पर किए जाने वाले भ्रष्टाचार और बेईमानी से बचें, व्यवहार में सज्जनता लाएं, जियो और जीने दो के भाव को अपना आदर्श बनाएं। हम कुछ ऐसा करें जिससे अपनी मातृभूमि, अपने देश के प्रति हमारी निष्ठा, प्रेम और श्रद्धा प्रकट हो, हमारे कार्यों से ये भाव प्रकट हो, मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहती हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। विद्यार्थी देश की बुनियाद होते हैं, अतः प्रत्येक विद्यार्थी अपने अध्ययन काल से ही संयमी, परोपकारी, परिश्रमी, साहसी और लगनशील हो। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे देश को खोखला बना रही बुराइयों को पहचान कर उन्हें दूर करें, और कुछ नहीं तो एक छोटा सा काम अवश्य करें, देश की बिजली, पानी और पेट्रोल को व्यर्थ ना गवाएं। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि कभी भी कहीं भी किसी के भी सामने अपने देश की निंदा ना करें, क्योंकि माँ की निंदा नहीं की जाती, देश की निंदा हमारी अपनी ही निंदा है। देश का सम्मान सर्वोपरि है, हम रहें या ना रहें, देश हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना। नमस्कार सर। आपका भी जवाब सुनना है। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं अपनी बात पता नहीं कहां से शुरू करूं। जब मुझे निमंत्रण मिला तब मैंने इस विद्यालय का नाम नहीं सुना था, और मैंने अपने साथियों से पूछा जो विद्यालय सेक्टर में काम करते हैं, और सबों ने यही कहा कि बहुत अच्छा विद्यालय है, आप जरूर जाएं। आज के इस कार्यक्रम के बाद मैं ये कह सकता हूं कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं यहां आज आया। मुझे जितनी बात पता चली, मैं सबों का नाम नहीं ले रहा हूं, सारे ट्रस्टीज जिनके बारे में मुझे बताया गया, इतने दिल से इस विद्यालय को संभाल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो भगवान के रूप में इस धरती पर। और वो सारे शिक्षक, मैं किसी का नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, वो सारे शिक्षक मैडम के अगुवाई में, लीडरशिप में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। बच्चों की प्रस्तुति से पता चलता है कि इसके पीछे कितना काम हुआ है। आप
जो अभिभावक यहाँ बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, शायद आज आप समझ नहीं पाएंगे कि इस कार्यक्रम का बच्चों के इन प्रदर्शन का क्या प्रभाव उनके जीवन में होना है। मैं 35 साल से शिक्षा में जुड़ा हूं और अब शायद तीसरा जनरेशन देख रहा हूं जिनको पढ़ाया या मेरे पढ़ाए शिक्षक उनको पढ़ाए और वो कहां कहां पहुंचे। मैं बच्चों को बड़े ध्यान से देख रहा था, आपके बच्चों को जो मेरे बच्चे हो गए हैं। देखिए, जन्म आप देते हैं, उनको बनाते हम हैं। बड़ा अच्छा लगा, मैडम से बात हो रही थी और मैडम ने कहा कि सर मेरे 2650 बच्चे हैं। कोई आपके बच्चे को अपना बच्चा समझता है और बच्चा समझ के पढ़ाता है और उसके लिए जीता और सोता और मरता है, ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। आप सौभाग्यवान हैं कि आपका बच्चा इस विद्यालय में है। हमारी परंपरा रही थी, मैं देख रहा था ध्यान से, वो 2 लड़कियां जो लंबा प्रस्तुति की, मैं भूल गया, नितंबरा, निश्चित तौर पर नितंबरा आगे चल के नेता बनने वाली है। उसकी उंगलियों को देखिए, हर बार वो लड़की जब हाथ उठाती है तो उसकी उंगली आगे होती है। निश्चित तौर पर वो भारत को लीड करेगी और ये सारे बच्चे सब, उसको यहाँ अवार्ड दिया गया, एवरी चाइल्ड इज अ विनर। यू आर फॉर्चुनेट टू बी इन दिस स्कूल and I must tell the parents, you are fortunate your children are here. So poignant presentations. हम गर्व करें कि हम भारत के नागरिक हैं। 500 साल, 1000 साल पहले ये दुनिया का सबसे अमीर देश था, सबसे समृद्ध देश था। क्या हुआ कि हम यहाँ पहुंच गए? यही तो प्रस्तुति हुई। और अगर आज 13 साल, 14 साल, 17 साल का बच्चा बच्ची ये सोच रहा है कि हम यहाँ क्यों पहुंच गए, तो निश्चित तौर पर इस देश का भविष्य सुरक्षित है। बर्मा से लेकर के कंदाहार तक भारत था। क्या कारण है कि भारत आज यहाँ सिमट गया है? अगर ये चिंता आज के बच्चे की है तो देश निश्चित तौर पर सुरक्षित है। और इनकी चिंता ये भी है, प्रस्तुति में देखिए कि कुछ बच्चों की आंख में आंसू क्यों है। ये बच्चे आगे चल के उनकी चिंता करेंगे। और यही भारत की परंपरा थी, जो बच्चे अपने नाटक में और प्रस्तुति में दिखा रहे हैं। हम 2 साल के कोरोना पीरियड से निकले हैं। हमको दुनिया गरीब देश कहती है, हम डेवलपिंग नेशन में माने जाते हैं और भारत अकेला देश है जो दुनिया में दवा बांटा। हम गरीब हैं, इसीलिए हम दूसरों की सेवा करते हैं और ये बच्चे करते हैं। इन बच्चों की सोच है जो कह रहे हैं कि कोविड की दवा हम दुनिया को पहुंचाए हैं और ये बच्चे आगे पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि इनकी सोच यही है। वसुधैव कुटुंबकम। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं थोड़ा इमोशनल टीचर हूँ, बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है समय काफ़ी हो गया है। कार्यक्रम थोड़ा देर से भी शुरू और लेट इवनिंग में हो रहा है। मैं केवल ये कहूँगा कि मैं सच में अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया। मैं पूरे जैन परिवार का, जो इस विद्यालय को सहायता करते हैं और जो आपके बारे में लोगों ने बताया, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपसे ही ये विद्यालय है, आपसे देश है। हमारी परंपरा यही थी, विद्यार्थी भिक्षा मांगने जाता था और समाज उसको खिलाती थी, क्योंकि समाज ये कहती थी ये हमारे लिए काम करता है। यही तो आप कर रहे हैं और उसी परंपरा को जिंदा रख रहे हैं। I feel really privileged and fortunate to have been invited to this school and to witness the school premises, meet the children. I was talking to children and they were telling me about various things that India has achieved. It's so satisfying.
I will only like to say something to my children. प्रश्न करो। हमारी परंपरा है प्रश्न करने की। जो हुआ है उससे केवल खुश होने की बात नहीं है। 1947 में हमने आजादी पाई, हम बहुत कुछ कर सकते थे। किसी बच्चे ने कहा कि हम शिक्षा का अधिकार कानून लाए, 2009 में क्यों लाए? आजादी के समय हमारी लड़ाई साक्षरता पर थी। हम अंग्रेजों से जब लड़ाई कर रहे थे, ये कह रहे थे कि हमारी साक्षरता जो 95% थी वो 7, 8, 10% पर क्यों आई? ये पूछना चाहिए। आजादी के बाद पहला शिक्षा का कमीशन उच्च शिक्षा पर क्यों होता है, प्राथमिक शिक्षा पर क्यों नहीं हुआ, जो अब जाके हम लाए हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक अभिन्न अंग रहा, और उसकी जो रिकमेंडेशन है उसमें हम लोगों ने सबसे ज्यादा जोर प्री स्कूल पर दिया है। कोई भी बच्चा चाहे वो गरीब क्यों ना हो, शिक्षा से बाहर नहीं हो, और ये देश तुम्हारा है, तुम्हीं को ये जिम्मेवारी लेनी है। हम लोगों ने कैसा 75 साल में देश चलाया, इस पर प्रश्न करो, जवाब मांगो और तैयार रहो कि 20 साल बाद तुमसे भी जवाब मांगा जाएगा। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमें बुलाया, इस विद्यालय का और पूरे ट्रस्टीज का मैं सही तौर पर, सही माने में बहुत बहुत आभारी मांग रहा हूँ। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। And Jain Bharati Prikavati Vidyalaya, I profusely thank Narpad Rai, Kharadila Jain, N.K. Cosco Parivar for their benevolence. They have always been in the forefront for any cause of the religion, society, and especially for the education all the times, and this time is no different. So they have agreed to, very kindly agreed to sponsor this award. Our profuse thanks to the family. And this year's award, may I have the pleasure of announcing it, goes to Madam Anupama Bharadwaj. I think for today, the prefix against your name, Madam, we can put. श्रीमती विभा जी, श्रीमती गीता जी और सलोनी जी और श्रीमती शशि जी, कृपया आप भी स्टेज पर पधारिए एक यादगार फोटोग्राफ के लिए। इन सारे
देश हमारा है, जन्मभूमि है हमारी, शान से कहेंगे हम सभी तो भाई भाई, प्यार से रहेंगे हम, हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है।
मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है उन पे हम नाज Ready for the strip search. जरूर है, मुझे नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है, माँ मेरी देखेगी नाचना जरूर है, जरूर है।
आसमान के तले आजा दूसरी बैटरी तू छोड़ो तेरी बदल तेरी कितनी है क्या बदलना है My ebullient thanks to our venerated gurus who guide and motivate to channelize our potential in the right direction and lead us towards success. I am immeasurably thankful to Professor C.B. Sharma, Director, Indira Gandhi National Open University, former Chairperson, NIOS, Delhi, for sparing his valuable time and gracing the occasion. Next, extend my deep sense of affirmation to Ms. R. Menka, IAS District Magistrate, North Alipur in absentia for her inspiring presence. I would like to proffer my cordial vote of thanks to our respected Chairman Shri N.K. Jainji for his gracious presence, kindness and ceaseless efforts for our growth. My deep sense of appreciation for our co-chairman Shri D.K. Jainji, whose deep leadership enables us to tread a new avenues of success. I extend my heartfelt thankfulness to esteemed trustee of Shri R. Vallabh Smarak Shikshan Nidhi and esteemed members of Vidyalaya Managing Committee for their support and guidance.